Good evening everyone. In the previous lecture we have discussed we have started our topic antihypertensive drugs, and in that we have looked in towards the classification, and we have also discussed the mechanism of action or the sites where the antihypertensive drugs have their effects. Now continuing with the group of drugs alone, we are going to start with ACE inhibitors. ACE inhibitors, and in ACE inhibitors we have previously discussed that they have pril in the end. So ACE inhibitors are captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril. Okay, so these all are the, and more drugs etc. are the ACE inhibitors. Now talking about the functions, or firstly we have to discuss the effect of food or duration of action of these specific drugs. Okay, so starting with drugs, we have captopril, nextly we have enalapril, nextly we have lisinopril, perindopril, and finally we have ramipril. Okay, so here we have our drugs. These are captopril, enalapril, lisinopril, perindopril and ramipril, and here we are going to discuss that either the drug is active or prodrug. ठीक है, या तो ड्रग क्या है, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है या प्रोड्रग फॉर्म में. ठीक है, इसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं. Nextly we have to discuss the duration of action of these respective drugs, and finally we will going to discuss the method of or mode of excretion. So in mode of excretion, firstly all the drugs are excreted by kidney in form of urine. First thing. Now talking about the duration of action. So captopril have 8 to 12 hours of duration of action. Nextly enalapril have 24 hours of duration of action, and lisinopril, perindopril and ramipril have more than 24 hours of duration of action, more than 24 hours. Now discussing further, captopril is an active drug. Okay, nextly enalapril is given in form or present in form of prodrug. Nextly lisinopril is also active. Okay, perindopril prodrug and ramipril prodrug. Now talking about the absorption. So captopril is rapidly absorbed. Rapid absorption. Similar rapid absorption is present in the ramipril. So it is also rapidly absorbed. But in case of captopril, food decreases the absorption. What happens? Food decreases the absorption of captopril. So it is given 1 hour before the meal, 1 hour
before meal. Okay, so it is given 1 hour before the meal. Now talking about enalapril, so it is also absorbed, well absorbed, well absorbed. ठीक है, so enalapril की बात करें तो क्या है, it is well absorbed, but extensive first pass food also food decreases absorption of enalapril also. Food decreases absorption. Now talking about, it have high first pass metabolism. First pass metabolism is high. अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो हम लोग कोई और रूट प्रेफर करेंगे इसको एडमिनिस्टर करने के लिए. सो दीज कैप्टोप्रिल एंड एनालाप्रिल लाइक ड्रग्स आर गिवन बाय आईवी इन्फ्यूजन इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज. Okay, now talking about the lisinopril. So it is slowly absorbed. Slowly absorbed. Okay, so in case of lisinopril, the absorption is slow and food does not affect the absorption. Food does not affect the absorption. Food does not affect absorption. Now moving on further, when talking about perindopril, so it is poorly absorbed. Poorly absorbed. और यहां से आफ्टर लिसिनोप्रिल वो ड्रग्स चालू हो गई हैं जिसमें क्या है, फूड का कोई रोल नहीं है एब्जॉर्प्शन में. ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन को अल्टर करने में फूड का कोई इफेक्ट नहीं है. सो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस द कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल एंड रैमीप्रिल वर द ड्रग्स एंड वी हैव मोर फर्दर ड्रग्स एंड दीज आर ACE inhibitors are frequently used as first line antihypertensive drugs. First line antihypertensive drugs. Okay, so ACE inhibitors were the frequently used first line antihypertensive drugs, and we have also discussed the whether the drug is active or prodrug. So we have captopril as an active drug, enalapril in form of prodrug. Nextly we have lisinopril as an active drug. Then both are the P's, matlab prodrug. Now talking about the excretion, so all the drugs are excreted from kidney. In all the drugs were excreted in form of urine from kidney. And now talking about the duration of action, so captopril having 8 to 12 hours of duration of action, enalapril having 24, and the rest of them have more than 24 hours of duration of action. Now talking about the captopril, so captopril having the rapid absorption, and the last drug, that is ramipril, also have the rapid absorption. But in case of captopril, there is alteration of the absorption of food. So it is given 1 hour before the meal, or we will prefer another route apart from the oral route, so that the drug is more available in the systemic circulation. And in case of enalapril, it is also affected, its absorption is also affected by the food, and it also have high first pass metabolism. So these captopril and enalapril are given by IV route in case of in cases of hypertensive emergencies. Now talking about lisinopril, so slow absorption, लेकिन यहाँ से वो फैक्टर चालू हो जाता है जिसमें क्या रहता है, जो फूड रहता है वो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करता है. सेम इन केस ऑफ पेरिंडोप्रिल, देयर इज नो रोल ऑफ फूड, एंड इन केस ऑफ रैमीप्रिल देयर इज नो रोल ऑफ फूड. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, we will discuss the mechanism of action of the ACE inhibitors.
ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, जब भी कभी ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होता है, ठीक है, हमने पहले भी इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुका है, लेकिन फर्दर एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे और कहाँ पे कौन सी ड्रग इफेक्ट कर रही है इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो जब भी कभी क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, सो देयर विल बी स्टिमुलेशन और सिक्रीशन. Kidney starts secreting renin, and what does renin do? Renin converts angiotensin. Renin converts angiotensin into angiotensin 1. Angiotensin 1. Okay, and nextly the angiotensin 1 is converted into the angiotensin 2. ठीक है, और ये वाली जो प्रोसेस होती है, ये कहाँ पे होती है, लंग्स में होती है. ठीक है, in presence of ACE enzyme. So angiotensin 1 is converted into angiotensin 2, and what does angiotensin do? Angiotensin firstly affect the blood vessels, nextly it also affect or it secretes or increases the secretion of aldosterone secretion. So firstly we will see the action on blood vessels. तो जब blood vessels पे इसके फंक्शन को देखेंगे angiotensin 2 के, तो ब्लड वेसल्स में क्या करता है एंजियोटेंसिन 2 हमारा, इट विल कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, इट विल कॉज वेजो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है. ठीक है, सो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या फायदा होगा हमको, देयर विल बी इंक्रीज्ड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, देयर विल बी इंक्रीज्ड peripheral vascular resistance, and finally there will be increased blood pressure. ये चीज हम लोग सबसे पहले इसमें भी डिस्कस कर चुके हैं. ये मैकेनिज्म नहीं है, ये नॉर्मल क्या रोल हो रहा है ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने के बाद, किडनी क्या करता है हमारा, किस तरीके से अल्टर करता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए. तो लगभग सारे सिस्टम्स में हमारे पास रेगुलेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं और कंपनसेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि कभी भी जब थोड़ा बहुत अल्टरेशन रहता है तो उसको वो मैनेज कर पाते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल तक. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, देयर विल बी इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, एंड व्हाट डज एल्डोस्टेरॉन डू? एल्डोस्टेरॉन लीड्स टू रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर. Aldosterone increases the retention of sodium and water, and through this mechanism, through this retention, it will increase the blood pressure. It will increase the blood pressure. Now talking about the next, that is angiotensin also have stimulatory effect or increased noradrenaline secretion, and when there is a increased noradrenaline secretion, there is cardiac hypertrophy. Okay, there will be cardiac hypertrophy. ठीक है, and remodeling. ऐसा क्यों? कार्डियक हाइपरट्रॉफी और रीमॉडलिंग क्यों होगा? क्यों? क्योंकि देयर विल बी इंक्रीज्ड नॉरएड्रेनालिन सिक्रीशन, और तो क्या होगा, जो हार्ट का फंक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर इंक्रीज फंक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड रीमॉडलिंग. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म दैट इज गोइंग इनटू इट. ठीक है, और क्या होता है यहां पे, ब्रेडिकाइनिन होता है हमारा. ठीक है, ब्रेडिकाइनिन. सो ब्रेडिकाइनिन खुद भी क्या रहता है, वेजोडाइलेटर होता है, पोटेंट वेजोडाइलेटर. एंड नेक्स्टली इट ऑल्सो इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इट इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ पीजीज, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन. और प्रोस्टाग्लैंडिन खुद क्या है, वेजोडाइलेटर है. ठीक है, सो वेजोडाइलेटर है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म. अब बात करते हैं नेक्स्ट कि मतलब आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस इनहिबिटर, तो इसमें होती हैं बेसिकली तीन चीजें. ठीक है, हमने क्या किया, इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया बाय गिविंग द एस इनहिबिटर. यहां पे हमने क्या दे दिया,
एस इनहिबिटर एडमिनिस्टर जब किया, ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स आएंगी. देयर विल बी नो कन्वर्जन, no conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2, ठीक है. there will be no further conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2. और जब ऐसी चीज नहीं होगी, ठीक है, तो पहले तो क्या है, अब हमारे पास कौन सी कंडीशन आई, हाइपरटेंसिव स्टेट आई, ठीक है. मतलब क्या है, उसमें ब्लड प्रेशर पहले से इंक्रीज्ड है. हमने क्या किया, एस इनहिबिटर्स को एडमिनिस्टर किया. सो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस इनहिबिटर क्या हुआ, ये वाली जो स्टेप है यहां पे क्या हो गया, स्टॉपेज हो गया, ठीक है, ये स्टेप स्टॉप हो गई. मतलब देयर विल बी नो फर्दर कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2. अब जब ये स्टेप नहीं होगी तो देयर विल बी वेजो डायलेशन, जहां पे ब्लड वेसल में क्या हो रहा था, सबसे पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था. ब्लड वेसल में क्या हो रहा था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था. तो वहां पे ब्लड वेसल में क्या होगा, देयर विल बी वेजो डायलेशन, देयर विल बी वेजो डायलेशन, एंड it will decrease the peripheral vascular resistance, it will decrease the peripheral vascular resistance. पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. एंड फाइनली इट विल लीड टू डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. सो दिस इज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स. नेक्स्टली यहां पे क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. कब, जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट हो रहा है, जब भी ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है. लेकिन आफ्टर गिविंग द एस इनहिबिटर्स तो यहां पे क्या हो गया, इनहिबिटरी इफेक्ट. सो देयर विल बी डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, देयर विल बी डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, एंड इट विल लीड टू लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर. और जब भी सोडियम और वाटर का लॉस होगा, सो देयर विल बी डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, देयर विल बी डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. Now talking about cardiac hypertrophy and remodeling, so there will be increased noradrenaline secretion, decreased noradrenaline secretion. So there will be decreased sympathetic effect on the heart. अगर sympathetic effect decrease हो जाएगा तो क्या होगा, there will be no cardiac hypertrophy or remodeling, मतलब cardiac hypertrophy और remodeling जैसी situation नहीं आएगी, ठीक है. So there will be no conversion of angiotensin 2 की वजह से क्या हो रही है, basically 3 processes हो रही हैं, ठीक है. We have 1, 2 and 3, ठीक है. So this is first step, this is our second step and this is our third step. तो ये 3 प्रोसेसेस हो गई. नेक्स्टली सेकेंड जो फंक्शन करता है एस इनहिबिटर्स हमारा परफॉर्म करता है, वो क्या करता है, इनहिबिट डिग्रेडेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, इनहिबिट डिग्रेडेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन. और मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा ब्रेडिकाइनिन है तो वो क्या होगा, बेसिकली वो हमारा क्या होता है, पोटेंट वेजो डायलेटर होता है. ब्रेडिकाइनिन इज पोटेंट वेजो डायलेटर. अब क्या हो रहा है कि ब्रेडिकाइनिन का डिग्रेडेशन स्टॉप हो रहा है. यहां पे पहले क्या हो रहा था, ब्रेडिकाइनिन का डिग्रेडेशन हो रहा था और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिक्रीशन था वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है. लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, वो नॉर्मल था. मतलब यहां पे अब क्या हो रहा है कि ब्रेडिकाइनिन का जो लेवल है या डिग्रेडेशन जो है वो एकदम स्टॉप हो गया. देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन सिक्रीशन, ब्रेडिकाइनिन मेटाबॉलिज्म. अब ब्रेडिकाइनिन जब मेटाबोलाइज नहीं होगा, सो इट विल कॉज द वेजोडाइलेटरी इफेक्ट. मोर ओवर इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव मेटाबोलाइट. इट विल फॉर्म इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स. It will lead to formation of inactive metabolites. और जब भी इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स, ये जो फॉर्मेशन होगा इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स का, सो इट विल लीड्स टू ड्राई कफ, इट विल लीड टू ड्राई कफ. सो दिस इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एस इनहिबिटर कि वो क्या करेगा, जब इनहिबिशन करेगा ब्रेडिकाइनिन के मेटाबॉलिज्म या डिग्रेडेशन का,
तो it will lead to formation of inactive metabolites and causing the dry cough. Moreover, it will increase the synthesis of prostaglandin or it will stimulate the secretion of prostaglandin. Normally क्या हो रहा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन आफ्टर द administration of ACE inhibitor there will be increased prostaglandin secretion and it will lead to further vasodilatory effect and contributing towards the decreased blood pressure. So synthesis in stimulation of synthesis of prostaglandins. ठीक है, सो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एस इनहिबिटर्स का. सो वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले क्या हो रहा है, नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो किडनी क्या करता है, रेनिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है. रेनिन फर्दर क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है. उसके बाद एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है. कहां पे होता है, लंग्स में होता है. ठीक है, इसके बाद एंजियोटेंसिन 2 के 3 स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स हैं. दीज आर द ब्लड वेसल्स पे क्या करा रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. अब वेसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है, जो ब्लड के फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल लीड्स टू इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. तो लैटरल जो प्रेशर लग रहा था वो क्या होगा, काफी बढ़ जाएगा ड्यू टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इफेक्ट, सो इट विल स्टिमुलेटिंग द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन. सो इट विल लीड टू रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर. एंड जब भी क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा ब्लड का या volume increase होगा due to retention of sodium and water, so it will lead to increased blood pressure. Now talking about the next effect, so it will also have the stimulatory effect on the heart. Why? Because of the increased noradrenaline secretion. जब भी noradrenaline का secretion increased होगा तो हार्ट के ऊपर क्या होगा, sympathetic effect काफी ज्यादा होगा. sympathetic effect की वजह से क्या होगा, there will be cardiac hypertrophy and remodeling according to the need of the heart. हार्ट को क्या है, ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब हार्ट को रिक्वायरमेंट ये है हमारी कि हमको ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना है. अब नॉरएड्रेनालिन फंक्शन कर रहा है हार्ट के ऊपर ताकि जो हार्ट है वो ज्यादा फंक्शन करे. अब कोई भी चीज अगर ज्यादा फंक्शन करेगी तो उसके अंदर क्या होगा, चेंजेस आएंगे. सो सेम इन केस ऑफ हार्ट, तो हार्ट में क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी. ठीक है, एंड रीमॉडलिंग. और सिमिलरली क्या हो रहा है, देयर विल बी मतलब जो ब्रेडिकाइनिन है उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस उतने अच्छे से नहीं हो पाता. तो ये जो वेजोडाइलेटरी इफेक्ट है ये नहीं हो पाता. नाउ आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस इनहिबिटर्स, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस इनहिबिटर देयर विल बी स्टॉपेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2. एंड जब भी ये चीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वेजोडाइलेशन, डिक्रीज्ड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड देयर विल बी डिक्रीज्ड blood pressure. Now talking about the aldosterone secretion, so there will be decreased aldosterone secretion, loss of sodium and water, and blood pressure will be decreased. Why? Because of loss of volume. Now talking about the sympathetic effect, so there will be decreased sympathetic or decreased noradrenaline secretion. Now talking about bradykinin, so there will be inhibition of degradation of bradykinin. So it will lead to formation of inactive metabolites which will have adverse effect, that is formation of cough, dry cough. ठीक है, और क्या उसकी वजह से increased prostaglandin secretion. So these prostaglandin and the bradykinin were the vasodilators. So it will also dilate the vessels and have their contribution in the decreased blood pressure. Now moving on further. Now moving on further, we will discuss firstly the pharmacokinetics. ठीक है, सो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या 4 पॉइंट कवर करते थे हम लोग, A, D, M, E, absorption, distribution, metabolism and excretion. So these drugs are excreted through kidney in form of urine, we have previously discussed. And nextly, these drugs are metabolized in liver
Now talking about distribution. So distribution कैसा रहता है? Basically it will poorly cross the blood brain barrier. These drugs poorly cross the blood brain barrier. Nextly, about the absorption. So these drugs are given orally and there will be IV administration in severe hypertension. So these drugs are captopril and enalapril. These are given by IV route, and their absorption is affected by the food. तो ये सारी चीजें कवर अप हो गई. So pharmacokinetics. After pharmacokinetics we have contraindications. ठीक है. So contraindications were explained by the same mnemonic or their first drug, that is captopril. ठीक है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट कैप्टोप्रिल. सबसे पहला क्या इफेक्ट हो रहा है? कफ. सो कैसा कफ हो रहा है? ड्राई कफ हो रहा है. ड्राई कफ क्यों हो रहा है? ये हम लोग अभी हमने मैकेनिज्म में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि ड्राई कफ क्यों हो रहा है. ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन. ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन क्या हो रहा है? ड्राई कफ जैसी सिचुएशन आ रही है. नेक्स्टली ए फॉर एंजियोइडेमा. ठीक है. अब एंजियोइडेमा कहां कहां का हो रहा है? नोज, लिप्स, माउथ, लैरिंग्स, and finally glottis. So these are the sites where angioedema is more prominent. ठीक है. Now talking about P. So there will be proteinuria. There will be proteinuria or loss of protein in urine. Now talking about the next, there will be teratogenic effect. It will also have teratogenic effect. Nextly, talking about O. So it will also cause severe hypertension को prevent कर रहा है. सो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस में क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा. सो सीवियर हाइपोटेंशन. Okay, so severe hypotension. Now talking about the next, it will cause neutropenia. It will cause रैश. ठीक है. और क्या कॉज करेगा? रैश. सिमिलरली रैशेस के बाद क्या आ गया? इचिंग. It will cause itching, and finally it will lead to loss of taste. It will lead to loss of taste sensation. ठीक है. So these are the contraindications of ACE inhibitors and pharmacokinetics. Moving on further, we will discuss the drug interaction and uses of ACE inhibitor.
Now talking about the drug interaction. So ACE inhibitors, okay, so ACE inhibitors interaction with diuretics, okay, so potassium sparing diuretics. It will cause severe hyperkalemia. Severe hyperkalemia. So these drugs should not be given in combination. Okay, now talking about next drug, it will have or it will cause, जैसे कि जो पता है हमको पहले भी कि जो लिथियम रहता है उसका जो एक्सक्रीशन रहता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, लिथियम का एक्सक्रीशन हेपेटिक ब्लड फ्लो पे. सो व्हाट डज ACE इनहिबिटर डू? इट विल डिक्रीज द हेपेटिक एक्सट्रैक्शन और हेपेटिक ब्लड फ्लो. इट विल decrease the hepatic blood flow. And due to decreased hepatic blood flow, it will leads to lithium toxicity. It will leads to lithium toxicity. Nextly, its interaction with NSAIDs, NSAIDs. Okay, NSAIDs. So what does NSAIDs do? It will inhibit the synthesis of prostaglandin. So there will be retention of sodium and water. Retention of sodium and water. ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ACE इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वेजोडाइलेटरी इफेक्ट आ रहा था. लेकिन NSAIDs ने क्या किया, इनहिबिट कर दिया सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन को. फर्स्ट चेंज. नेक्स्टली रिटेंशन करा रहा है किसका, सोडियम और वाटर का. रिटेंशन जब होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा. ACE इनहिबिटर्स क्या कर रहे थे, इसका उल्टा काम कर रहे थे. दे आर डिक्रीजिंग द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर. सो when ACE inhibitors are given with NSAIDs, so there will be decreased antihypertensive effect of ACE inhibitors. ठीक है, antihypertensive effect of ACE inhibitors. Now moving on further, we will discuss the uses of ACE inhibitors. Firstly, these drugs are used in hypertension. All grades of hypertension, severe, essential, all grades of hypertension. और हमने क्या डिस्कस किया था, these are frequently used first line antihypertensive drugs. First line antihypertensive drugs. Now moving on further. Okay, so it is used in congestive cardiac failure. It is used in congestive cardiac failure and used in left ventricular failure. Left ventricular failure. Left ventricular failure. Why? Because it decreases the preload and afterload. Because it decreases preload and afterload. Okay, so it decreases the preload and afterload. Now talking about the next. Myocardial infarction.
So now talking about myocardial infection. So ACE inhibitors should started within 24 hours for short and long term improvement. For short and long term improvement. Now nextly, these drugs are used in diabetic nephropathy. Okay, ACE inhibitors can also be administered or used in diabetic nephropathy. So in this diabetic nephropathy like situation, ACE inhibitors, and the next class of drug, those were ACE inhibitors and ARBs, angiotensin receptor blocker. ठीक है, so ARBs are used or preferred. ACE inhibitors or ARBs are preferred. ठीक है, ACE inhibitors or ARBs are preferred. What is their function? They decreases the systolic blood pressure. They decreases the systolic blood pressure and have or decreases the intraglomerular, या तो उसके पहले बोला जाए तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेंगे. ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन जो इनका रहता है, ये क्या करते हैं, डायलेट करते हैं. ठीक है, डायलेशन ऑफ रीनल इफरेंट arterioles. Nextly, there will be decreased intraglomerular pressure. Decreased intraglomerular pressure. There will be decreased intraglomerular pressure and inhibition of mesangial cell growth. Inhibition of mesangial cell growth. ठीक है, सो ये चार फंक्शन है. क्या क्या है ये, कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है सबसे पहले उसको डिक्रीज कर रहा है. नेक्स्ट क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है. किसका डायलेशन हो रहा है, रीनल इफरेंट आर्टेरियोल्स का. ठीक है, रीनल इफरेंट आर्टरीज का, सॉरी रीनल इफरेंट आर्टरीज का डायलेशन हो रहा है. ठीक है, नेक्स्टली क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर. प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, कहाँ का, इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर. एंड देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ मेसेंजियल सेल ग्रोथ. ठीक है, सो दीज आर द uses. And finally we have the last use, that is it is used in scleroderma. ठीक है, ACE inhibitors are used in scleroderma. ठीक है, scleroderma in renal crisis. So ACE inhibitor prevent effects of angiotensin 2 on renal arteries. Okay, so it is all about the ACE inhibitors. Now the next class of drug that we are going to discuss are ARBs. So now moving on further, we will discuss the angiotensin receptor blocker. ठीक है, ARBs.
these are angiotensin receptor blockers. ओके, सो ARBs में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ड्रग्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स थी हमारी. तो इसमें ARBs के जो एंड में, नेम के एंड में जो सार्टन यूज होगा. ठीक है, सो ऑल द ड्रग्स हैविंग सार्टन इन देयर एंड वर बिलोंग टू ARBs. सो दीज आर लो सार्टन, कैंडेसार्टन, वालसार्टन, इर्बेसार्टन, टेल्मीसार्टन, ओल्मेसार्टन. सो दीज आर द ड्रग्स. ठीक है, इनके एंड में क्या होगा, सार्टन प्रेजेंट होगा. नॉट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं. सो बेसिकली क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है एंजियोटेंसिन 1, एक होता है 81 और नेक्स्ट क्या होता है हमारा 82. 82 का कोई फंक्शन हमको नोन नहीं है. एंजियोटेंसिन 1 के होते हैं 3 फंक्शन. कौन कौन से, सेम. ठीक है, एक तो क्या होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है, फिर सिक्रीशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन. प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन. ठीक है, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ 81 रिसेप्टर. ठीक है, 81 रिसेप्टर के ये 3 फंक्शंस होते हैं. क्या क्या होते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन एंड सिक्रीशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन. ठीक है, तो जो फंक्शन रहता है ARBs का वो बेसिकली किस पे रहेगा, ARBs बेसिकली फंक्शन ऑन 81. ठीक है, अब क्या होता है कि जो एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारा 81 रिसेप्टर हो गया, ठीक है, उसका एगोनिस्ट कौन हुआ, एंजियोटेंसिन 2. ये क्या हो गया हमारा, एगोनिस्ट हो गया. नेक्स्टली वी हैव, अब यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली देयर विल बी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. ठीक है, और ये कौन है हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, कौन है, ARBs. सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. बस एक चीज ध्यान रखनी है हमको ARBs के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, 3 स्टार पॉइंट है ये हमारा. क्या कि जो ARBs रहते हैं, ARBs डू नॉट अफेक्ट ब्रैडीकाइनिन मेटाबॉलिज्म. अब ब्रैडीकाइनिन के मेटाबॉलिज्म को जब ये अफेक्ट नहीं करेंगे, सो इट विल नॉट हैव कॉन्ट्राइंडिकेशन और एडवर्स इफेक्ट लाइक ड्राई कफ. सो ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर एस इनहिबिटर एडमिनिस्टर करने के बाद क्या हो रहा है, ड्राई कफ लाइक सिचुएशंस आ रही है या टॉलरेट नहीं हो पा रहे हैं उनको एस इनहिबिटर, सो दोज पेशेंट्स वर एडमिनिस्टर्ड और दोज पेशेंट्स वर गिवन ARBs, that is angiotensin receptor blockers. ठीक है, now talking about the next thing, that is the adverse effect of these drugs. Adverse effect, so in adverse effect we have headache, hypotension, एक चीज कम हो रही है, ठीक है, हाइपोटेंशन, एक चीज बढ़ रही है, दैट इज हाइपर कैलेमिया. ठीक है, सिमिलर इफेक्ट है जैसा कि एस इनहिबिटर्स का. सो हाइपर कैलेमिया, ठीक है, हाइपर कैलेमिया. इसके बाद इसमें एंजियो इडेमा भी कॉमन रहता है, एंजियो इडेमा.
लेस कफ, ठीक है, कफ रहेगा थोड़ा बहुत लेकिन मिनिमल अमाउंट में रहेगा, जितना एस इनहिबिटर के कंपैरिजन में अगर कहा जाए तो मिनिमल अमाउंट में रहेगा, ठीक है। एंजियोएडेमा हो गया, हाइपरकैलेमिया हो गया, ऑल्सो इट ऑल्सो हैव टेराटोजेनिक इफेक्ट, सो दीज ड्रग्स आर contraindicated in cases of pregnancy. Okay, so teratogenic effect. Okay, so these all are the adverse effect that we encounter in cases of or in administration of ARVs. Now moving on further. Now talking about the uses. So uses are same. It is given in case of hypertension. It is administered in congestive cardiac failure. Nextly, it is given in myocardial infection. It is given in myocardial infection and congestive cardiac failure in patients which starts producing cough with ACE inhibitors. So ARVs are preferred in those patients. Now talking about the next, fourth, it is also used in diabetic nephropathy, as we have discussed previously in the uses of ACE inhibitor. So it is given in diabetic nephropathy. And finally it is used, or it will have antiplatelet effect. It will have antiplatelet effect. ठीक है, it will have antiplatelet effect. Now talking about the last drug that we have in our renin-angiotensin system. ठीक है, so these are direct renin. These are direct renin inhibitors. Direct renin inhibitors. Okay, in this we have only one drug, that is aliskiren. Okay, we have aliskiren. What does it do? It will inhibit the renin. It will directly inhibit the renin. रेनिन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा है. सो एलिस्किरेन क्या करेगा? इट विल इनहिबिट द renin. So there will be no conversion of angiotensin into angiotensin 1. So there will be decreased or fall in level of angiotensin 1 and angiotensin 2. Angiotensin 2. अगर बात करें एलिस्किरेन के यूजेस की, ठीक है, so it is also used in hypertension or as monotherapy. Hypotension. It is used in hypertension as monotherapy. या तो कॉम्बिनेशन में, या तो फिर कॉम्बिनेशन में. और कॉम्बिनेशन में किसके साथ? एक तो एस इनहिबिटर्स, नेक्स्टली ARBs के साथ, ठीक है, ARBs के साथ कॉम्बिनेशन में, या डायूरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में इसको दे सकते हैं. डायूरेटिक्स, ओके, या तो डायूरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं. कैसा एडमिनिस्ट्रेशन? फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, सो इट इज एडमिनिस्टर्ड ओरली. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट, दैट इज द एडवर्स इफेक्ट.
एडवर्स इफेक्ट, सो इन दिस वी हैव एडवर्स इफेक्ट की जब बात करते हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स की, सो वी हैव हेडेक. ओके, सो वी हैव हेडेक. Then nextly we have angioedema. ये तो कॉमन हो गया हमारा, ठीक है, हेडेक और एंजियोइडेमा. इसके बाद जीआई डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, जैसे कि एक तो डायरिया हो गया, ठीक है, डायरिया, और क्या हो गया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, ठीक है. सो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स के अंदर हमने एस इनहिबिटर्स डिस्कस किए, दोज वर प्रिल्स, ठीक है. उसके बाद पहले ड्रग के बारे में देखा, फिर उनके इफेक्ट्स को पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ा, एडवर्स इफेक्ट पढ़ा, यूजेस पढ़े, ड्रग इंटरेक्शन पढ़ा. इसके बाद हम लोग ARBs पे शिफ्ट हुए, ठीक है. एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इनका बेसिक फंक्शन क्या है. एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक 81 होता है, एक 82. 82 का कोई फंक्शन नॉन नहीं है. सो दिस विल ARBs हैव फंक्शन ऑन द 81 रिसेप्टर. एंड 81 रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है, 81 खुद क्या करता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, और दूसरा नॉर एड्रेनालिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है. सो ARBs जब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, सो देयर विल बी वेजोडाइलेशन, ठीक है, एंड डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, डिक्रीज्ड नॉर एड्रेनालिन सिक्रीशन, सो डिक्रीज सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑन द हार्ट, ठीक है. एंड फाइनली वी हैव डिस्कस्ड द डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, एंड वी हैव ओनली एलिस किरेन इन दिस category. Okay, so we will discuss further in the next lecture. Thank you.